वेलकम। तो सबसे पहले तो सॉरी, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं है। कंटिन्यू वीडियो आया करेंगे जैसे कि हमने प्लेज किया है इस साल। तो तीसरा एपिसोड देखते हैं, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे और जो है फिर लास्ट में कमेंट्स भी देखेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं, ठीक है? तो प्ले। I'm fully convinced that a lot of y'all men don't like women, y'all like little girls. Fully convinced that you need to touch grass, but continue. Y'all walk around talking about, it's just I just have preferences. Preferences aren't exclusive to men. Talking about no saggy skin, Let's be real, nobody likes saggy skin. no cellulite, Most men don't care about cellulite at all. no stretch marks. Again, we don't care. Titties Not need to that be all the much. way up here. Okay, titties tiny and up here. At this point, you're just rambling. Tiny and up here. No man has that standard. No hair on your body at all. Obviously, body hair is natural, but no man wants to be dating someone that's hairier than him, and no man likes hair in his food. And she needs to be small, Yes. cute little voice. The reason men go for short girls is the exact same reason girls go for tall guys, and voice is not a factor at all. It's the words the girl uses, not how she sounds. Yeah, what you're describing is a prepubescent girl, a child. That's what you think you're describing, yeah? But in actuality, all of those traits up there aren't exclusive to children. In fact, women over 40 can have all of those traits. The problem is y'all don't like women, y'all like children, and it's weird as hell. No, what is weird is you classing all of these traits as exclusive to children. It's also weird that you think those traits are universal standards for men. They're not. What's even weirder than that is a video generalizing all men as pedos having nearly 2 million likes. Social media echo chambers are a hell of a drug, I guess, but that's it. ओके, तो मोहतरमा जो है कंप्लेन कर रही थी बेसिकली कि लड़के जो हैं ऐसी लड़की चाहते हैं जो कि दुबली हो, पतली हो, उसकी स्किन जो है टाइट हो, अच्छी हो, और भी कुछ फिजिकल ट्रेट्स बताए, हैरी ना हो, उसकी वॉइस जो है ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है? तो ऐसे कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने बेसिकली वो कंप्लेन कर रही थी बिकॉज व्हेन यू हिट द वॉल तो ऐसा होता है, राइट? हम जानते हैं। तो भाई साहब ने ये कहा कि नहीं, और उन्होंने सही कहा कि देखो बात यह है कि ये सारे जो ट्रेड्स जो तुम बता रही हो ना, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रन के लिए नहीं है। मतलब मोहतरमा का कहना था कि ये जो चीज़ें जो बता रही हैं, जो आदमी जो प्रेफर करते हैं वो एक्चुअली बच्चों में होते हैं, और मैन जो है वो पीडीफाइल है, पीडोफाइल है। तो देखो, हमें तो नाम भी नहीं पता उस चीज़ का, ठीक है? तो ऐसा है कि नहीं, हम उतनी छोटी लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं, हम वो वुमेन ढूंढ रहे हैं जो अपने आप की केयर करती हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, पर्सनल हाइजीन उसका अच्छा हो। और वैसे भी ऐसा है कि वुमेन की प्रेफरेंसेस तो है ना, और उसे कोई जो है ईवल नहीं बताता, लेकिन आदमी जो है अगर उसके प्रेफरेंसेस हो तो भाई फिर तो पता नहीं आपने क्या गुनाह कर दिया है, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता इनका। आगे चलें। Don't you dare disobey me, Coraline! Ah! Ew! Ah! It's only I didn't get that one. I'm moving in with my boyfriend. Fuck you. And if you could hand this on to my boyfriend. Fuck you. My boyfriend was saying the other day. Fuck you. Can I accompany you on your journey? Sure. I've got to get Scruffy back to my boyfriend. I've been in Africa. ओके ये वाला फनी था। डोंट बी अ सिम। देखो, तुम जितना झुकोगे, तुम जितना बर्दाश्त करोगे, तुम जितना एडजस्ट करोगे ना, वुमेन उतना ही फ़ायदा उठाएंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। द मॉडर्न अमेरिकन वुमेन प्ले नॉट टू लूज। हाँ, आगे देखते हैं। Africa for more than a week now, and my experience with dating women from the continent has been jaw-dropping. I had one girl bring me some damn flowers to welcome me to her country. That same girl, the minute she came in my house before we was about to go out and get some food, she tries to wash my dishes. So we in a taxi and we get to our destination. I'm about to pull my money out to pay. She pays for the whole ride. Bro, I'm not even done. So we got some food that you gotta eat with your hands. And this woman was feeding me like I was a king. We get back to my crib. The woman cleans my whole house. Didn't even ask her to do any of this shit that she's doing. Mind you, this girl is 23, 24. If I didn't know any better, I would have married her. And she wasn't the only one that cooked and cleaned. See, these women over here play to win. They don't play not to lose. An American woman's mindset is, I'm not doing that shit until I'm your wife. That's a loser mentality. ओके, बहुत ही बेहतरीन बात करी है। देखो, आदमी जब बाहर जाता है ना तो वो दुनिया भर की टेंशन में घूम रहा होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफिस में,
बाहर, राइट, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, राइट। जब वो बाहर गया तो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसकी रिलीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसकी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, राइट, उसकी जॉब की, उसकी गाड़ी की, हर चीज़ की जिम्मेदारी उसकी है। जब वो घर आता है और देखता है कि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, राइट, छोटी छोटी चीज़ों से, कि भाई जैसे उसने बताया कि जब मैं कॉन्टिनेंट गया, आई थिंक वो अफ्रीका की बात कर रहा है, राइट, तो जब वो वहाँ गया तो जो 23 ईयर्स ओल्ड जो उसको लड़की मिली, वो उसको अपने हाथ से खिला रही है, उसका पूरा घर साफ़ कर रही है, बिल पे कर रही है उसकी ट्रैवलिंग का, राइट, कहीं टैक्सी वैक्सी का। और वो कह रहा है कि जब मैं अमेरिका वापस आता हूँ तो ये बोलती है कि जब तक वाइफ नहीं बनाओगे जब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। मतलब ये वही बात हो गई कि आप मिलिट्री में जाओ और बोलो कि जब तक आप मुझे जो है बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं खड़ा कर दोगे ना, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप उस लायक हो, तब कहीं जाके आपको जॉब मिलती है ना। तो फिर आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, कुछ बताऊंगा नहीं, ऐसी भर्ती कर लो फिर मैं दिखाऊंगा। ऐसे कहाँ दुनिया चलती है, लेकिन विमेन के हिसाब से चलती है आजकल, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। ये वाला फनी था। बाकी सबका क्या हुआ, हर चीज़ मैन पे क्यों डाल रही है, बाकी के जेंडर्स कहाँ हैं। फ़नी था। लास्ट जनरेशन की वुमेन जो है ना, जो अभी ओल्ड हैं, जो कि ओल्ड एज में है, उन्होंने जो फाइट की थी वो डिफरेंट लेवल की थी, लेकिन बाद में वो हाईजैक्ट हो गई और अब तो कुछ भलता ही चल रहा है, भलता ही बोलते हैं ना। आगे चलते हैं। Can you name one job that men have besides being a misogynistic asshole? अरे ये तो पुरानी है भाई, इसको तो जानते हैं अपन, ये फिर आ गई। आए देखे क्या कह रही है ये, ऑल वुमेन, अच्छा ऑल मैन आर, ठीक है। All the women can't do. You're sure damn right I can. Like, is your only job in life hating on men? You claim every man to be a misogynist. The thing is, you are being a misandrist. If you hate men, you should expect men to hate you back. If you supported the KAM 2020 movement in any way, men are going to hate you. That's not misogyny, that's just natural cause of nature. It's not because you're women, it's because you kind of wanted them to die. I completely get that gender equality should be a thing, and I stand by that. But putting the blame and pressure on men isn't the way to go. The thing that I don't like about these feminists is that they try to make men look like complete garbage. I'm sorry, Jessica, but have we ever had a kill on women movement? I'm sorry, but not every man on this earth is a complete misogynist. If you really want gender equality to be a thing, then stop hating on men. The thing that fires up men is things like the KAM movement. Make sure to follow me. I'm so close to 50K, please. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। वो जो लड़की है वो हम उन्हें पहले भी देख चुके हैं, हम मिल चुके हैं पहले तो वीडियो के थ्रू। तो पॉइंट इज़ के जो मूवमेंट है ना, किल ऑल मैन, ये जो मूवमेंट चल रही है, राइट, ये मतलब इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या बात कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि इस चीज़ के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई पकड़ नहीं रहा है। अगर इमेजिन करो, अगर आदमी ये कहने लगे किल ऑल वुमेन, पुलिस आएगी भाई साहब, रेड होंगी, लोगों को पकड़ा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, ठीक है। लेकिन किल ऑल मैन, फाइन, इट्स गुड, राइट। और दूसरी बात ये है कि भाई जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी अपने जेंडर की, फिर तुम कैसे बात कर सकती हो इक्वालिटी की। हर चीज़ मैन पे डाल दो, हर चीज़ मैन पे डाल दो कि भाई इन्होंने गलती की है, यही बुरे हैं, इन्होंने ये करा है। अरे यार हद है, इतना भी अच्छा नहीं लगता ना, ओवर मत करो, ठीक है। और ये ओवर करने का नतीजा है जो अपन वीडियो बना रहे हैं, जो अब अपन बात कर रहे हैं, वरना आदमी नहीं करते थे ये सब चीज़ें। वो कहते थे ठीक है यार, औरतें कर रही हैं, करने दो इन्हें, ठीक है, अपन के पास और भी इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, अपन वो करते हैं, ठीक है। ये बोलेंगी, दिल हल्का हो जाएगा, चुप हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने क्या हद कर दी, ठीक है। अब आदमी जो है पलट के पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, इक्वालिटी, ठीक है, फिर ऐसे करो, राइट। अब वो पलट के जवाब देने लगे हैं, अब वो सवाल करने लगे हैं तुमसे कि भाई तुम क्या लेके आ रही हो टेबल पे। तो ये इन्हीं का नतीजा, और ये चीज़ बढ़ेगी, और एंड में आखिर में इन्हीं का नुकसान है। आगे चलते हैं। व्हाट हैपन टू, हेलो लिसन, लेट मी टेक यू टू डिनर। अच्छा, I mean, I'm no expert, but maybe what happened to that is men are scared of girls like this. तो बेसिकली जो है मोहतरमा, पहली वाली मोहतरमा कह रही थी कि क्या हुआ हेलो और डिनर पे ले जाने का, मतलब जो जेंटलमैन बिहेवियर था उसका। तो दूसरी मोहतरमा ने कहा कि इन जैसी लड़कियों की वजह से अब वो आदमी जो है डरते हैं। और मोहतरमा देखें, ये वाली मोहतरमा क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि आई डोंट वांट अ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, आप मुझे सुबह सुबह मैसेज मत करें गुड मॉर्निंग,
सुबह सुबह आप ट्रांसफ़र करें, गुड मॉर्निंग ट्रांसफ़र करें बैंक अकाउंट में, ये लेवल है वुमेन का। फिर ये कहती हैं कि डोंट ऑब्जेक्टिफाई वुमेन। इलाज कराओ यार इनका कुछ, और मुझे नहीं लगता डॉक्टर से काम चलेगा, इनका कोई भारी इलाज ढूंढना पड़ेगा, वो होता ना मैजिक वाला, सोसरस ऐसा कुछ बुलाना पड़ेगा, भूत वूत उतारने पड़ेंगे इनके। आगे चलते हैं। And the worst part is all the comments on that video saying, as you should, yes, queen. Men are literally not treated as human beings anymore. They're treated as bank accounts. Then they'll go on this TikTok rant to get a bunch of views saying, where did all the good guys go? All men are trash. I don't ever hear this anymore. Men are, for the most part, used for child support, used as a free meal. Or if he is a decent human being, you will friend zone him and he'll stay your friend and he's in misery because he will actually treat you right. So you're asking what happened to hello, let me take you to dinner, let me take you out for a date? Toxic girls are what happened to that. बहुत ही बेहतरीन बात की है मोहतरमा ने। ये सारी करनी धरनी जो है लड़कियों की है। पहले हम दरवाज़ा खोलते थे, चेयर सरकाते थे, राइट, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती? ठीक है भाई कर लो। अब उन्हें उसमें भी तकलीफ है। एक तरफ वुमेन कहती हैं कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, दूसरी तरफ कहती हैं हमें वो लड़का चाहिए जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, ताकि वो बिल पे कर सके। तो फिर इक्वालिटी कहाँ है भाई? और दूसरी बात यह है कि लड़कियाँ आदमियों को ट्रीट करती हैं वॉलेट की तरह, ठीक है, कि बस बिल भरे जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर भाई सारी जिम्मेदारी इनकी, सारी गलती इनकी, ठीक है। फ्री के मील्स डेट पे जाती हैं हंस बोल के, और बेचारे लड़के जो हैं जो सीधे साधे होते हैं वो चले जाते हैं, बिल भी पे करते हैं, और उसके बाद जो है मिलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक्सचेंज होता है ना। लव का मतलब ये नहीं है जो तुम फील कर रहे हो, लव का मतलब ये है कि तुम क्या कर रहे हो सामने वाले के लिए, उससे वो फीलिंग आएगी, राइट। लव इज़ नॉट व्हाट यू फील, इट्स व्हाट यू डू, ठीक है। तो अब आदमी तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सामने वाली नहीं कर रही है, और फिर उसके बाद यही कंप्लेंट करती है वेर आर द गुड मैन गॉन, ऐसा कुछ, राइट। तो चाहती क्या हो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं उठ के, ठीक है। खैर तो बात यह है कि यही है। एनीवेज खैर थोड़ा सा कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर डन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कमेंट है, शी बॉट यू फ्लावर्स, डैम ब्रो आई हैव नेवर गॉटन फ्लावर्स, अ मैन विल गेट हिज फर्स्ट फ्लावर व्हेन ही डाइज। ट्रू। मेरे हिसाब से मुझे शायद एक आध बार किसी ने दिया था स्कूल में, मे बी, शायद मुझे याद आ रहा है। चॉकलेट तो मुझे बहुत लोगों ने दिए, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने दिए, कुछ लड़कियों ने दिए, लेकिन फ्लावर मुझे शायद ध्यान है कि एक आध किसी ने दिया था, ठीक है। एनीवेज किसी ने भी बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, हेल इज़ एम्प्टी, क्योंकि सारे जो हैं बाहर घूम रही हैं सारी की सारी। अच्छा, किसी ने ये बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है कि लड़कियों को ना, जब लड़कियां कहती हैं ना कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तो हम हंसते हैं, अंदर से हंसते हैं, और इनकी बेवकूफ़ी पे रोना भी आता है, राइट, गुस्सा भी आता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है विदाउट मैन जो ये मटेरियल चीज़ों के लिए पीछे भागती है ना, ये वाला पर्स, ये वाली सैंडल, हाँ, ये वाला मेकअप, ये जो चीज़ों के, जो मोबाइल नहीं छूटता इनसे, ये वीडियो बना लें, ये फ़ोटोग्राफ ले लें, राइट, कुछ नहीं होगा। ये जंगलों में घूम रही होंगी, पेड़ों के आसपास रह रही होंगी, बहुत सारी मर जाएंगी, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ आदमियों ने बनाया है और इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। और पता है जब कोविड आया ना, तो बहुत सारी लड़कियों की आंखें खुली हैं। 2.5-3 साल काम नहीं था, 2-2.5 साल सबकी बैंड बजी थी, तो लोगों को समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी वुमेन जो थी उन वर्कर्स को निकाल दिया गया था। थोड़ी बहुत लोगों को अकल आई हल्की हल्की, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। बहुत जो है जिसे बोलते हैं रूड अवेकनिंग, इनका इंतज़ार कर रही है। एनीवेज तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तीसरे चौथे एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करो, ठीक है, और सब्सक्राइब किया करो। तो बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।